हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ओके, सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर operates at layer 7 of OSI model. Okay, and it distribute incoming request, that is HTTP and HTTPS request among multiple targets. Okay, to improve availability, scalability and fault tolerance. Okay, so first responsibility is डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग ट्रैफिक। ओके, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग द मल्टीपल टारगेट्स। ओके, सेकेंड इज टू परफॉर्म हेल्थ चेक। जो भी टारगेट मशीन्स है उन टारगेट मशीन्स का हेल्थ कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डीपली डिस्कस किए थे। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। Okay, application load balancer does routing as well. ALB route request to the right target group based on rules. Okay, जब भी हम rules create करते हैं at that time we have to select conditions as well. Okay, so here there are 6 conditions. First one is the path based routing, then host based routing, query string routing, header based routing, HTTP method routing, and last one is the source IP routing. Let's go for the hands-on part of routing. In this diagram, जो भी आप AWS resources देख रहे हैं वो AWS resources हम one by one AWS पे create करने वाले हैं. Okay, so first we will create a VPC using this CIDR range. Then we will create internet gateway. Then we will attach this internet gateway to the VPC. Then we will create a public subnet 1 using this CIDR range. Then we will create public subnet 2 using this CIDR range. Okay, after that we will create a route table. This is the configuration. Okay, after that we will attach this route table to the both subnet. Then we will create a security group. In this public subnet 1 we will launch 2 EC2 instances and we will use this security group. Then in public subnet 2 we will launch these 2 EC2 instances and again we will use this security group. So first let's create this infrastructure on AWS first. यहाँ पे AWS dashboard में आने के बाद okay, for a creation of a VPC, search here VPC, then click on this. VPC console open होने के बाद यहाँ पे click on here your VPC. Then click on here right option, that is the create VPC. Then give the name of the VPC, that is the project VPC. Then give the CIDR range for the VPC 10.0.0.0/16. Then keep the other options same. Then click on create VPC. Now हमारी जो VPC है ये VPC क्रिएट हो गई है with this CIDR range. Okay, then we will create internet gateway. So click on this option in a left navigation. This is the internet gateway. Then click on create internet gateway and give the name as the project internet gateway. Then click on create internet gateway. Then now after that we will attach this internet gateway to the VPC. Okay, then click on attach to VPC. Then select our VPC, that is the project VPC. Then click on attach internet gateway. Now हमने ये जो इंटरनेट गेटवे है वो क्रिएट किया है एंड एक VPC हमने क्रिएट किया है एंड ये जो इंटरनेट गेटवे है ये वाला प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे जो क्रिएट किया है उसे हमने VP के साथ अटैच भी कर दिया है. ओके, नाउ वी विल क्रिएट सबनेट. सो क्लिक ऑन सबनेट्स, देन क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट्स, देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन and select our project VPC. Then give the name as a project public subnet 1. Then select availability zone. We are selecting 1A.
then give the CIDR range 10.0.1.0/24. Now it's 24 means these three are fixed and last one can change, so we are getting 256 IPs. Now we will create another subnet in another availability zone. This is the 1A, CA Central 1A. Now we will create another subnet, give the name as project public subnet 2 and select availability zone 1B. Then give the CIDR range 10.0.2.0/24. Now here also these three are fixed and last one will change, so 256 IPs हमें मिलेंगी. Then click on create subnet. Now हमने प्रोजेक्ट पब्लिक सबनेट 1 एंड प्रोजेक्ट पब्लिक सबनेट 2 दो पब्लिक सबनेट हमने क्रिएट कर दिए हैं. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ राउट टेबल. देन राउट टेबल में जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं उस पर डिसाइड होता है कि कोई जो सबनेट है वो सबनेट पब्लिक है या प्राइवेट है. सो लेट्स क्रिएट अ राउट टेबल. Then after clicking here on a route table, click on create route table, give the name project route table. Then now select our VPC, that is the project VPC. Then click on create route table. Okay, then here click on subnet association. Now we are attaching this route table to the both subnet. Okay, then click on this edit subnet association and select both subnet. Then click on save association. Now हमने राउट टेबल दोनों सबनेट के साथ एसोसिएट कर दिया है. ओके, लेट्स नाउ राउट टेबल का कॉन्फ़िगरेशन है वो करना हमें बाकी है. सो नाउ क्लिक ऑन एडिट राउट्स. अगर कोई रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनेट से आती है एंड डेस्टिनेशन विद इन दिस CIDR रेंज है, मीन विद इन आवर VPC CIDR रेंज, देन वो रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी हमारे लोकल मीन्स जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस है वहाँ पे जाएगी. अगर EC2 इंस्टेंसेस से अगर हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है तो उसका डेस्टिनेशन विद इन दिस CIDR रेंज नहीं होगा. ओके, सो आउट ऑफ CIDR रेंज होगा. तो वो जो रेस्पॉन्स है वो जाएगा इंटरनेट गेटवे पे and then select our internet gateway. Okay, then click on save changes. Now this route table is a public route table and ये जो राउट टेबल हम जो भी सबनेट के साथ अटैच कर रहे हैं वो सबनेट जो है वो भी पब्लिक सबनेट है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट से आ रही है एंड रेस्पॉन्स भी भेजा जा रहा है, सो इट्स अ पब्लिक सबनेट. So after this configuration, let's check in our diagram कि till now हमने क्या resources create किए हैं and next हम क्या create करने वाले हैं. Okay, as per the current configuration हमने VPC create किया है, internet gateway create किया है and we attach this internet gateway to the VPC. Okay, so हमने दो public subnet create किए हैं, then हमने एक route table create किया है with this configuration and we attach this route table to the both subnet. Okay, now first we will create a security group. Okay, then we will launch two EC2 instances in this subnet and two EC2 instances in this subnet. Okay, so let's create a security group and then we will launch these EC2 instances. Okay, now यहाँ पे AWS कंसोल पे आने के बाद फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आपको सर्च करना होगा EC2, देन हियर क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देन हियर ऑन लेफ्ट नेविगेशन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप. क्लिक ऑन दिस सिक्योरिटी ग्रुप, देन हियर क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, देन गिव द नेम एज EC2 security group. This is the name and here we will allow port 22 and 80.
then select our VPC, that is the project VPC, then click on add inbound rule, then here search SSH, this is SSH, and we will allow this from anywhere, then here search HTTP, this is HTTP, and here this is allowing from anywhere. Okay, so this is the configuration. Then click on create security group. Then now we successfully created our security group. So this is our security group. Click on this. This is inbound rule. So हम यहाँ पे inbound means incoming traffic, that is HTTP and SSH traffic from anywhere हम यहाँ पे allow कर रहे हैं, and outbound all traffic allowed है. So हम यहाँ पे successfully हमने security group create कर दिया है. Now we will launch a EC2 instance. So here click on instances and click on launch instances. Now here give the name server 1, then scroll down, then here we are proceeding without key pair. Here in a network setting click on edit, then here select our VPC, that is the project VPC, then in subnet select subnet 1, then here in auto assign public IP click on this and make sure it's enabled. In a firewall, that is in security group, click on select existing security group, and here select our security group, that is EC2 security group that we created right now. Then keep all the configuration same and click on launch instance. So यहाँ पे हमने एक फर्स्ट सर्वर जो है सर्वर 1 हमने क्रिएट कर दिया है. सो लाइक दिस हमें 3 सर्वर क्रिएट करने हैं. ओके, सो हम मैन्युअली यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके हम मैन्युअली ये सेटअप नहीं करने वाले हैं. जो पूरा सर्वर का सेटअप जो है वो हम इसी इंस्टेंस पे करेंगे, एंड देन हम एक इमेज क्रिएट करेंगे ऑफ दिस इंस्टेंस, एंड यूजिंग दैट इमेज हम 3 सर्वर क्रिएट करेंगे. ओके, सो वेट फॉर सम टाइम. ये जो स्टेटस चेक जो है वो 3 आउट ऑफ 3 होने के बाद हम इस मशीन को कनेक्ट करके हम यहाँ पे वेब सर्वर सेटअप करेंगे, एंड देन वी विल क्रिएट इमेज ऑफ दिस मशीन. नाउ ये जो सर्वर 1 का जो स्टेटस चेक जो है वो 3 आउट ऑफ 3 पास हो गया है. नाउ वी विल कनेक्ट दिस मशीन. क्लिक ऑन कनेक्ट. नाउ कुछ ही टाइम में ये जो मशीन है वो कनेक्ट हो जाएगी. देन यहाँ पे हम एक वेब सर्वर सेटअप करने वाले हैं. सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आप वेब सर्वर सेटअप कर पाएंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल चेंज द यूजर टू द रूट, then we will install httpd-y. तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है. तो इंस्टॉलेशन के टाइम ये जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाती है www.html here. सो हियर यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे vi-index.html. then with page from server 1, save page, and then start the services. systemctl start httpd, then enable httpd. enable httpd. ओके, सो ये जो मशीन है ये मशीन का हम पब्लिक आईपी हम ब्राउज़र पे चेक करके देखते हैं कि हम हमारे वेब सर्वर को जो है वो रीच कर पा रहे हैं कि नहीं. तो हियर http:// give the public IP, then hit enter. सो हम सक्सेसफुली हमारे सर्वर 1 का जो वेब सर्वर है उस सर्वर को हम रीच कर पा रहे हैं. सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सर्वर 1 पे किया, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें अदर 3 सर्वर पे करना है. ओके, सो रैदर देन इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे कि इस मशीन का जो है हम एक इमेज क्रिएट करेंगे, एंड यूजिंग दैट इमेज
हम 3 सर्वर्स क्रिएट करने वाले हैं ताकि हमें मैन्युअली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का सेटअप ना करना पड़े. Okay, so click on this, click on action, click on image and templates, then click on create image. So to give the name project image, and then description is optional, then keep this option as selected, and make sure it's enable delete on termination, and then click on create image. Now here in the left navigation, here images are there, then here click on AMIs. Now यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इमेज है, जस्ट स्क्रॉल ऑन राइट साइड, स्टेटस जो है वो पेंडिंग है. ओके, नाउ कुछ ही टाइम में ये जो स्टेटस है वो अवेलेबल हो जाएगा. देन वी कैन यूज दिस इमेज फॉर लॉन्चिंग EC2 इंस्टेंसेस. देन वी विल गेट एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे सर्वर 1 में है. ओके, so wait for some time. I will be back when the status changes from pending to available. Now the status of this project image is changed from pending to available. Okay, so now from this image हम EC2 machines create करने वाले हैं. So click on this image and launch instance from AMI. Now here give the name server2 and scroll down, then keep the configuration same. Then here click on proceed without key pair, then click on network setting, here edit, then select our VPC, project VPC, then select subnet, project subnet, this one, then auto assign public IP, make sure it's enabled, then select security group, here click on select existing security group, then select our security group, that is EC2 security group, and then click on launch instance. So now हमने second server जो है वो create कर दिया है. Okay, so now let's create third server. Click on here AMI, and then select this image, and then click on launch instance from AMI. Give the name server3, then scroll down, then here we are proceeding without key pair. Then in network setting click on edit, then select our VPC, that is the project VPC, then select here project subnet 2, then select auto assign public IP, enable, then click on select existing security group, then select our security group, then keep all the things same, and then click on launch instance. Okay, so हमने सर्वर 3 भी लॉन्च कर दिया है. Then again click on AMI, then select our this project image, then again click on launch instance from AMI, then click on here name, give the name server 4, then scroll down, then here we are proceeding without key pair. Then in network setting click on edit, then select our VPC, that is the project VPC, then select subnet, project public subnet 2, then auto assign public IP, make sure it's enabled, then click on select existing security group, then select our security group, that is the EC2 security group, and then click on launch instance. Then here come back in instances. So till now हमने 4 सर्वर लॉन्च किए हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 and सर्वर 4. Okay, now we will connect to the server 2. Then here click on connect, click on this, and then click on connect, then it's easy to connect, then click on connect.
तो नाउ हमने सर्वर 2 को कनेक्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई सॉफ्टवेयर मैन्युअली इंस्टॉल नहीं किया है, हमने सर्वर 1 पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, दैट इज HTTPD सॉफ्टवेयर। ओके, सो यहाँ पे सर्वर 2 में हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया। ओके, बट सर्वर 1 की इमेज से हमने ये सर्वर जो है सर्वर 2 हमने क्रिएट किया है। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये जो डायरेक्टरी है where www.html, ओके, तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स पेज है vi index.html, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमने इमेज से ये क्रिएट किया है। तो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें सेम मिलेगा, विद डेटा एंड सॉफ्टवेयर ऑल हमें सेम मिलेगा। ओके, सो लेट्स वी विल change this page. This is the page from server 1 to change to server 2. Save the page and start the services. Systemctl start HTTPD and then enable this. Systemctl enable HTTPD. Okay, then copy the public IP of server 2. Then this is the public IP of the server 2, and then come on browser, hit http//public IP, then select, hit enter. then ये जो पेज है दिस इज द पेज फ्रॉम सर्वर 2 वो यहाँ पे आ गया है, मीन्स सर्वर 2 में हमारा वेब सर्वर जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। ओके, सो सर्च अगेन, रिफ्रेश। नाउ सर्वर 3 एंड सर्वर 4 जो है वो भी सक्सेसफुली स्टेटस चेक जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू सर्वर 3, क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो नाउ यहाँ पे भी सर्वर 3 में हमने कोई सॉफ्टवेयर मैन्युअली इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे भी इन दिस डायरेक्टरी where www and html, तो हमें एग्जैक्ट सेम इंडेक्स पेज मिलेगा। तो हमें यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम पेज मिलेगा जो हमें सर्वर 1 पे मिल रहा था। ओके, सो वी विल चेंज टू सर्वर 3, सेव एंड कम बैक एंड स्टार्ट द सर्विसेज, start HTTPD and enable HTTPD. So now copy the public IP of server 3 and come back, and here copy the public IP of the server 3 and then hit from browser http:// is the public IP, then hit enter. then now this ये जो पेज है this is the page from server 3। तो यहाँ पे भी सर्वर 3 में हमारा वेब सर्वर जो है वो सेटअप हो गया है। So now connect to the server 4, click on connect, then click on connect. Now server 4 को कनेक्ट करने के बाद come in this directory where www.html, तो यहाँ पे भी हमें सेम पेज मिलेगा। This is the page from server 1. Okay, so change this to server 4, then save this page and then start the services. Systemctl start HTTPD and then enable HTTPD. Okay, so let's copy the public IP of the server 4. This is the public IP of the server 4. Then come on browser, let's try to reach web server. तो यहाँ पे ये जो पेज है ये पेज आ रहा है फ्रॉम सर्वर 4। तो सर्वर 4 में भी हमारा वेब सर्वर जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। सो फर्स्ट हमने क्या किया, तो हमने सर्वर 1 जो है वो मैन्युअली लॉन्च किया, देन वहाँ पे HTTPD सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया एंड पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमने index.html फाइल क्रिएट की थी। देन हमने सर्वर 1 का एक इमेज क्रिएट किया एंड देन यूजिंग दैट इमेज हमने सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4 ये जो 3 इंस्टेंसेस हैं वो हमने फ्रॉम इमेज हमने लॉन्च किया।
ओके, सो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ा एंड जो डेटा था, जो फाइल थी, हमें एग्जैक्ट मिली। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द इमेज। ओके, सो हमने 4 सर्वर्स जो है वो सक्सेसफुली सेटअप कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द डायग्राम। देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंजेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। एज पर द करंट कॉन्फ़िगरेशन हमने एक VPC क्रिएट किया। ओके, देन हमने क्रिएट किया इंटरनेट गेटवे, देन वी अटैच दिस इंटरनेट गेटवे टू द VPC। देन हमने क्रिएट किया पब्लिक सबनेट 1 एंड देन पब्लिक सबनेट 2। ओके, देन हमने क्रिएट किया राउट टेबल, ओके, विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड इस राउट टेबल को हमने अटैच कर दिया टू द बोथ सबनेट। ओके, देन हमने लॉन्च किए these 2 instances in this subnet and these 2 instances in this subnet। ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने AWS पे सक्सेसफुली सेटअप किया है। ओके, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ओके, अब तक इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने AWS पे क्रिएट नहीं किया है। ओके, सो ये जो सर्वर 1 है, ओके, यहाँ पे हम लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स क्रिएट टारगेट ग्रुप 1, ओके, एंड वी विल ऐड दिस सर्वर 1 in that target group। okay, and we will change index.html in server 1। okay, so let's connect to the server 1। यहाँ पे AWS डैशबोर्ड में आने के बाद, okay, so click on this checkbox and connect to the server 1। then click on connect। so now कुछ ही टाइम में हमारा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। now we connected to the server 1। change the user sudo su hyphen, then इस डायरेक्टरी में आने के बाद var ww and html, यहाँ पे हमारे पास index.html पेज है। ओके, सो दिस इज द index.html। ओके, दिस इज द पेज फ्रॉम सर्वर 1। ओके, सो इस सर्वर 1 पे हम लॉगिन रिक्वेस्ट जो है वो URL में /login जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस रिक्वेस्ट को हम सर्वर 1 पे सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा mkdir login। देन इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक index.html पेज क्रिएट करना है। ओके, सो राइट हियर दिस इज login page and save this file। देन हमने यहाँ पे एक index.html फाइल हमने क्रिएट की है in a login directory। okay, now come back। okay, click on instances, then in this left navigation, आपको क्लिक करना है टारगेट ग्रुप्स, then click on create target group। then target type हम instances इस target group में हम ऐड करने वाले हैं, so click on instances and give the target group name, so login target group। okay, and ये जो प्रोटोकॉल है that is HTTP and port is 80, keep the same and select the VPC project VPC and health check keep on / keep all things same and click on next। and यहाँ पे हम इस टारगेट ग्रुप में हम सर्वर 1 ऐड करने वाले हैं, so click on this। okay, and यहाँ पे it is asking for port for routing traffic to the selected instance। so हमारा जो सर्वर 1 है वहाँ पे हम अपाचे HTTPD सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्ट 80 पे रन करता है, so keep the same port as 80 and click on include as pending below and click on next। okay, then keep all things same and click on create target group। now ये जो login target group है वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। the state is currently unused, okay, because हमने अभी तक load balancer क्रिएट नहीं किया है and we are not sending any traffic to this target group, that is the
login target group. Okay, so let's come back on the diagram. So यहाँ पे हमने टारगेट ग्रुप 1 हमने क्रिएट किया है. Okay, so let's create target group 2. Okay, and we will add this server 2 in that. Okay, so we are sending payment, any request that is coming on payment. Okay, like this is the DNS name. Okay, and then if any request coming on payment, okay, that request we are sending to the server 2. Okay, so let's edit the index.html, okay, in this server 2. So let's connect server 2. Now यहाँ पे AWS console पे आने के बाद here click on instances, then click on server 2, click on connect, and then click on connect. तो नाउ कुछ ही टाइम में हमारा जो इंस्टेंस है वो कनेक्ट हो जाएगा. नाउ हमारा जो इंस्टेंस जो है वो कनेक्ट हो गया है. चेंज द यूजर टू द रूट यूजर, कम बैक इन द डायरेक्टरी www.html. ओके, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा, दैट इज द पेमेंट. देन go inside this directory and here create an index.html page. और यहाँ पे हम लिखेंगे this is the payment page. This is the payment page. Then save this file. Restart the service again. systemctl restart httpd. सर्वर 2 का जो httpd सर्विस है उसको हमने रिस्टार्ट किया है. तो लेट्स रिस्टार्ट सर्वर 1 एज वेल. तो systemctl restart httpd. ओके, सो हमने सर्वर 2 का जो index.html पेज है उसको भी हमने एडिट कर दिया है. नाउ लेट्स क्रिएट पेमेंट टारगेट ग्रुप. सो हियर क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप अगेन, click on create target group, then click on here target group name. This is the payment target group. Then keep all things same, then select VPC, keep health check configuration same, click on next. Then here select server 2 and here click on include as pending below. Okay, then click on next, scroll down and then click on create target group. ओके, सो हमने जो पेमेंट टारगेट ग्रुप है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है. ओके, लेट्स कम बैक हियर. सो नाउ हमारे पास दो टारगेट ग्रुप है, दैट इज लॉगिन एंड पेमेंट. लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम. सो यहाँ पे हमने टारगेट ग्रुप 1 दैट इज द लॉगिन टारगेट ग्रुप 2 दैट इज द पेमेंट टारगेट ग्रुप. ओके, ये दो टारगेट ग्रुप जो है वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है. Okay, so now let's create target group 3 and we will add this server 3 in that. Okay, so let's connect server 3. Now यहाँ पे AWS console पे आने के बाद scroll this and click on instances, then now connect server 3. Click on connect and then scroll down and click on connect. Then change the user to the root and then come back in the directory where www and html. In this directory we created a page index.html. Open this page. Then here remove this content. Right here this is query server where value is equals to book and save this.
and restart the HTTPD system CTL restart HTTPD. Okay, now let's create a target group 3. So here scroll down, click on target groups, then click on create target group. Okay, then here this is the query target group, then scroll down, select our VPC project VPC, then keep the health configuration same, then click on next, then here select server 3 and then click on include as pending below, then click on next, then scroll down and click on create target group. तो हमने सक्सेसफुली ये जो टारगेट ग्रुप 3 है वो क्रिएट कर दिया है. ओके, लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम. सो टिल नाउ हमने टारगेट ग्रुप 1 दैट इज द लॉगिन टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप 2 दैट इज द पेमेंट टारगेट ग्रुप एंड टारगेट ग्रुप 3 क्वेरी टारगेट ग्रुप. ये थ्री टारगेट ग्रुप हमने AWS पे क्रिएट कर दिए हैं. ओके, लेट्स क्रिएट अ टारगेट ग्रुप 4. ओके, ये एक डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप है. ओके, अगर कोई रिक्वेस्ट अगर कोई लॉगिन पे आ रही है तो दैट रिक्वेस्ट विल गो इन दिस टारगेट ग्रुप. अगर कोई रिक्वेस्ट पेमेंट पे आ रही है तो इट विल रही है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर 2 पे. ओके, अगर कोई रिक्वेस्ट विथ दिस क्वेरी आ रही है वो जाएगी सर्वर 3 पे. अगर कोई अदर डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप पे. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप. यहाँ पे AWS कंसोल पे आने के बाद क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप्स, then click on create target group, and then here this is the default target group. Then scroll down, select our VPC, then keep all things same, click on next, then select our server 4 and then click on include as pending below. Okay, then click on next and then click on create target group. ओके, सो हमने डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप भी हमने क्रिएट कर दिया है. ओके, सो लेट्स कनेक्ट सर्वर 4 and there we will change index.html page and there we will write this is the default request. Here change the user sudo su hyphen, then come back in the directory where www html. Here we have index.html. Okay, then click on I so we can insert here, remove this content. This is default, this is a default server. Right here this is the default server and save this file, then restart HTTPD, then systemctl restart HTTPD. Okay, so now हमने सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4 उसका जो सेटअप है वो हमने क्रिएट कर दिया है एंड देन हमने टारगेट ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है. ओके, टारगेट दैट इज द फर्स्ट वन इज द लॉगिन टारगेट ग्रुप, देन पेमेंट टारगेट ग्रुप, देन क्वेरी टारगेट ग्रुप एंड फोर्थ वन इज द डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप. ओके, सो सक्सेसफुली हमने 4 जो टारगेट ग्रुप है वो सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर दिया. ओके, सो लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम. नाउ हमने ये जो टारगेट ग्रुप है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं. ओके, फर्स्ट वन इज द लिसनर एंड सेकंड वन इज द रूल. लेट्स गो बैक ऑन द AWS console and we will start creating application load balancer. At that time we will learn about listener and the rules. So now यहाँ पे AWS console पे आने के बाद here
click on load balancers. Then click on create load balancer. Now we are creating application load balancer. So click on create. Then give the name as the project load balancer. तो दिस लोड बैलेंसर इज इंटरनेट फेसिंग बिकॉज ये जो लोड बैलेंसर है वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा फ्रॉम द इंटरनेट. देन स्क्रॉल डाउन, देन सेलेक्ट आवर VPC. So this is the project VPC. Okay, then select availability zones and subnet. Okay, so minimum हमें 2 availability zone select करने होते हैं. So click on this availability zone and select our subnet, that is subnet 1. ये availability zone में हमारा एक subnet है, that is this project public subnet 1. and this availability zone में हमारा subnet 2 है, that is the project public subnet 2. Okay, then here in a security group we haven't created any security group for the load balancer. Then here click on create security group. Then here in a security group name, load balancer security group. Okay, here we will allow port 80. Then select our VPC, that is the project VPC. Then click on add rule. Then we are allowing HTTP, then this, and here we are allowing the request from anywhere. Okay, so keep outbound rule configuration same. Then click on create security group. So हमने security group जो है वो successfully create कर दिया. Then come back here, then refresh, then click here and just select this one, load balancer security group, and remove this. Okay, then scroll down. जब भी हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, ओके, एट दिस टाइम दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज लिसनर्स एंड राउटिंग. ओके, सो ये जो लिसनर है क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिसीव करेगा. ओके, अगर वो रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल एंड पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं अगर उस पे आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा. ओके, सो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं प्रोटोकॉल इज HTTP एंड पोर्ट इज 80. ओके, अगर इस प्रोटोकॉल एंड पोर्ट पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है, ओके, सो रिसीव दिस रिक्वेस्ट एंड परफॉर्म दिस डिफॉल्ट एक्शन. ओके, सो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट एक्शन है यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, देन रीडायरेक्ट टू URL एंड रिटर्न फिक्स रेस्पॉन्स. अगर यहाँ पे मैं उसको फिक्स रेस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ, ओके, सो देन क्लिक ऑन रिटर्न फिक्स रेस्पॉन्स एंड वी आर सेंडिंग 404 response 404. Okay, so page not found. Okay, so now on a ALP DNS name अगर कोई रिक्वेस्ट आती है on this protocol and port, okay, so उस रिक्वेस्ट को ये जो लिसनर है उसको एक फिक्स्ड रेस्पॉन्स भेजेगा. so जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है 404, तो उस जिसने भी रिक्वेस्ट किया है उसको ये रेस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज 404. ओके, सो हम यहाँ पे उसको उस रिक्वेस्ट को हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं टू द टारगेट ग्रुप. ओके, सो क्लिक ऑन फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप एंड हियर सेलेक्ट डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप. ओके, एंड हियर वेट इज 1, मीन्स हियर जो भी 100% ट्रैफिक है उसको हम इसी टारगेट ग्रुप पे भेजना चाहते हैं. ओके, you can add another listener. Okay, so here you can previously जो हमने listener create किया था, तो this is on HTTP 80. so at this time you can select HTTPS and port is 443 and you can use this default action. Okay, so जब भी आप load balancer create कर रहे हैं, ओके, एट दैट टाइम आपको लिसनर्स कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां प्रोटोकॉल एंड पोर्ट सेलेक्ट करना है, ओके, एंड एक डिफॉल्ट एक्शन सेलेक्ट करना है, ओके, आउट ऑफ दीज 3. ओके, सो नाउ एट दिस टाइम वी आर एडिंग ओनली 1 लिसनर. ओके, दिस इज द 1. ओके,
सो जब भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ओके, सो जब भी आप लिसनर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ओके, एट दिस टाइम प्रोटोकॉल एंड पोर्ट सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो डिफॉल्ट एक्शन है, ओके, सो ये भी सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। ओके, सो जब भी हम एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे एट दिस टाइम, ओके, सो AWS हमारे लिए एक डिफॉल्ट रूल जो है वो क्रिएट करेगा। ओके, सो विथ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। नाउ कुछ ही टाइम में ये जो स्टेटस है, करंट स्टेटस इज प्रोविजनिंग, ये जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, सो आई विल बी बैक once the status is active. Now the status of our application load balancer changed to active. Okay, so just scroll down here in listeners and rules. Okay, यहाँ पे एक listener हमने create किया था जब हम application load balancer create किए थे, at that time हमने एक listener add किया था। ओके, सो जब भी आप application load balancer create कर रहे हैं at that time एक listener add करना mandatory है। ओके, एंड जब भी आप लिसनर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एट दैट टाइम आपको प्रोटोकॉल एंड पोर्ट ऐड करना होता है, एंड एक इस लिसनर का जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। ओके, सो हमने प्रोटोकॉल ऐड किया था HTTP एंड पोर्ट 80, एंड डिफ़ॉल्ट एक्शन जो था फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप क्या था, दैट इज द डिफ़ॉल्ट टारगेट ग्रुप। करेक्ट, सो हमारा जो लिसनर जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, सो जब भी आप लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, सो AWS ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट रूल। ओके, सो दिस इज अ डिफ़ॉल्ट रूल। ओके, लिसनर रूल्स में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ रूल। ओके, एंड इस रूल्स की कोई कंडीशन नहीं होती है, एंड इट विल व्हाट इज द एक्शन फॉर दिस रूल, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, दिस इज द डिफ़ॉल्ट टारगेट ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम। नाउ जो लिसनर कॉन्फ़िगरेशन था दैट इज HTTP एंड पोर्ट इज 80। ओके, अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजूँ ऑन HTTP पोर्ट एंड हियर DNS नेम, ओके, अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो वो रिक्वेस्ट आएगी लिसनर पे, ये लिसनर अपना कॉन्फ़िगरेशन देखेगा दैट इज HTTP एंड 80, एंड दिस रिक्वेस्ट इज आल्सो ऑन प्रोटोकॉल HTTP। ओके, सो लिसनर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, एंड करंटली हमने कोई अदर रूल्स जो है दैट इज रूल 1, रूल 2, रूल 3, यहाँ पे हमने कोई अदर रूल्स, कस्टम रूल्स हमने ऐड नहीं किया है। इट्स डायरेक्टली execute this default rule, and it will forward this request to the target group 4, that is the default target group. Okay, and it will send that request to the server 4. Let's go back on AWS console and we will try to hit on HTTP protocol and the DNS name of load balancer. Now AWS console पे आने के बाद click here on project load balancer, and here copy the DNS name, open new tab, and here send the request on HTTP protocol dot slash slash, and this is the DNS name, and hit enter. Okay, so in the response हमें मिला this is the default server. Okay, so ये जो request है वो server 4 पे गई. Okay, so here come back in a load balancer. यहाँ पे जब हमने रिक्वेस्ट किया तो वो रिक्वेस्ट आई लिसनर पे। ओके, लिसनर पे आने के बाद लिसनर ने चेक किया कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मुझे कब रिक्वेस्ट रिसीव करनी है। अगर कोई रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल पे आती है तो उसको मुझे रिसीव करना है। तो ये जो रिक्वेस्ट है HTTP प्रोटोकॉल पे आई है। ओके, सो लिसनर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। ओके, एंड रिसीव करने के बाद करंटली हमने कोई रूल्स, कस्टम रूल्स हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो डायरेक्टली जो डिफ़ॉल्ट रूल है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड इट विल सेंड दैट रिक्वेस्ट टू द डिफ़ॉल्ट टारगेट ग्रुप। दैट्स व्हाई हियर in a response we are getting this is the default server. Okay, let's go back on the diagram. So now let's create a rule 1. Okay, let's create a rule 1. So let's go back on the AWS console.
नाउ यहाँ पे AWS कंसोल पे आने के बाद दिस इज आवर लोड बैलेंसर एंड दिस इज द लिसनर. हियर क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन मैनेज रूल्स एंड क्लिक ऑन एडिट रूल्स. सो करंटली यहाँ पे हमारे पास एक ही डिफॉल्ट रूल है. ओके, सो रूल ऐड करने के लिए हियर क्लिक ऑन ऐड रूल. सो रूल्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द कंडीशन एंड सेकंड वन इज द एक्शन. ओके, सो अगर कंडीशन मैच होती है तो ये एक्शन परफॉर्म होती है. ओके, सो इन कंडीशन यहाँ पे होस्ट हेडर, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग, HTTP request method, HTTP header and source. These are the options. Okay, so now currently in a path हमें क्या चाहिए कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है ऑन स्लैश लॉगिन, ओके, सो उस रिक्वेस्ट को ओके हमें लॉगिन टारगेट ग्रुप के पास फॉरवर्ड करना है. ओके, राइट. सो यहाँ पे हम देंगे स्लैश लॉगिन स्टार. ओके, जो भी कोई रिक्वेस्ट ऑन स्लैश लॉगिन आ रही है, ओके, तो उस रिक्वेस्ट को मुझे भेजना है टारगेट ग्रुप के पास. सो इन एक्शन वी आर सेलेक्टिंग आवर टारगेट ग्रुप, दैट इज दिस लॉगिन टारगेट ग्रुप. ओके, जस्ट स्क्रॉल डाउन, click on next. Now it is asking for priority. Okay, so now I am giving priority as a 1. Okay, then click on next and then click on add rule. तो नाउ हमने ये जो रूल है ये रूल सक्सेसफुली ऐड कर दिया है. ओके, नाउ वी विल ऐड अनदर रूल. देन क्लिक ऑन ऐड रूल. देन नाउ here click on condition, click on path and here in a path give payment star. अगर कोई रिक्वेस्ट पेमेंट पे आ रही है, ओके, नाउ हियर लॉगिन पे नहीं आ रही है, अगर कोई रिक्वेस्ट पेमेंट पे आ रही है तो इस रिक्वेस्ट को मुझे भेजना है ओके ऑन पेमेंट टारगेट ग्रुप. तो हियर सेलेक्ट एंड सेलेक्ट पेमेंट टारगेट ग्रुप. क्लिक ऑन नेक्स्ट. Here I am giving priority 2. Then click on next. Then click on add rule. Okay, so now I am adding another rule, that is the third rule. Okay, then here click on add condition. Here now I am selecting query string. Here value is equals to book. Okay, so in this URL अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है विद दिस क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक. ओके, सो इस रिक्वेस्ट को मुझे भेजना है टू दिस टारगेट ग्रुप, क्वेरी टारगेट ग्रुप, दिस वन. ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ आई एम गिविंग प्रायोरिटी 3. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन ऐड रूल. सो सक्सेसफुली हमने ये जो 3 रूल्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं. ओके, लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम. सो नाउ हमने रूल 1 ऐड किया, रूल 2 ऐड किया एंड रूल 3 ऐड किया. ओके, सो अगर कोई रिक्वेस्ट स्लैश लॉगिन पे आ रही है सो वो रिक्वेस्ट जाएगी टू द लॉगिन टारगेट ग्रुप. ओके, एंड लॉगिन टारगेट ग्रुप में हमने ये सर्वर ऐड किया है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी दिस सर्वर पे. अगर कोई रिक्वेस्ट पेमेंट पे आ रही है ओके तो वो रिक्वेस्ट जाएगी पेमेंट टारगेट ग्रुप के पास. ओके, इन पेमेंट टारगेट ग्रुप हमने सर्वर 2 ऐड किया है तो वो रिक्वेस्ट जाएगी दिस सर्वर के पास. एंड अगर कोई रिक्वेस्ट जो है URL अगर वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक दिस क्वेरी स्ट्रिंग के साथ आता है वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर 3 के पास. ओके, कोई अदर रिक्वेस्ट आती है इन रूल्स को मैच नहीं करती है सो डिफॉल्ट रूल जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर 4 के पास. ओके, दैट इज द डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप. ओके, सो लेट्स गो बैक एंड वी विल ट्राई टू हिट यूजिंग दीज URLs. सो नाउ हमने ये जो रूल्स है ये कॉन्फ़िगर कर दिए हैं. ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू रीच दोज टारगेट ग्रुप यूजिंग URL. ओके, सो नाउ फर्स्ट आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट ऑन लॉगिन. ओके, सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है वो जानी चाहिए लॉगिन टारगेट ग्रुप के पास
एंड इन लॉगिन टारगेट ग्रुप हमने सर्वर 1 ऐड किया है। सो यहाँ पे हमें वो जो index.html पेज है, लाइक दिस इज द लॉगिन पेज, वो वाला इंडेक्स जो index.html पेज है, इन रेस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए। ओके, सो लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, सो हमें रेस्पॉन्स में मिला दिस इज द लॉगिन पेज। ओके, सो सक्सेसफुली ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर 1 के पास गई है। ओके, सो नाउ लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो जानी चाहिए सर्वर 2 के पास, दैट इज द पेमेंट टारगेट ग्रुप। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। सो इन द रेस्पॉन्स हमें ये मिला, दिस इज द पेमेंट पेज। तो सक्सेसफुली ये जो रिक्वेस्ट है वो गई है सर्वर 2 के पास, दैट इज द पेमेंट टारगेट ग्रुप। Okay, so let's send the request with the query string value equals to book. Where value equals to book and send the request. So ये जो request है वो successfully गई है server 3 के पास, that is the query target group. Okay, so now I am sending request with only HTTP protocol and ALB DNS name. Now ये जो सर्वर है, ये जो रिक्वेस्ट है वो गई सर्वर 4 के पास, दैट इज द डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप। दैट्स व्हाई हमें रिस्पॉन्स में मिला दिस इज द डिफॉल्ट सर्वर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो हो रहा है। ओके, सो जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिक्वेस्ट गई क्वेरी टारगेट ग्रुप के पास। ओके, सो नाउ जब मैंने ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी, ओके, सो फर्स्ट ये जाएगी लिसनर के पास। ओके, सो लिसनर के पास जाने के बाद हियर कम बैक हियर। सो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो रिक्वेस्ट आई लिसनर के पास, तो लिसनर चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है, ओके, वो HTTP प्रोटोकॉल पे आई है क्या। अगर आई है तो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। ओके, एंड देन चेक करेगा जो रूल्स है, लिसनर के जो रूल्स है। ओके, रूल्स को वो चेक करेगा फ्रॉम लो प्रायोरिटी टू द हाई प्रायोरिटी। ओके, सो फर्स्ट इट विल चेक करेगा 1। ओके, सो ये कंडीशन मैच हो रही है या नहीं। ओके, सो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है विथ दिस क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, सो फर्स्ट रूल मैच नहीं हुआ, सो इट विल चेक सेकेंड रूल आल्सो मैच नहीं हुआ, इट विल चेक थर्ड रूल। सो थर्ड रूल इट्स अ क्वेरी स्ट्रिंग, तो ये रूल मैच हो गया। दैट्स व्हाई ये जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो गई टू द दिस टारगेट ग्रुप। दैट्स व्हाई हमें रिस्पॉन्स में मिला दिस पेज। नाउ आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट। सो ये रिक्वेस्ट कैसे फ्लो हो रही है। सो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो गई फर्स्ट लिसनर के पास, लिसनर ने इस रिक्वेस्ट को रिसीव किया एंड लिसनर चेक करेगा रूल्स फ्रॉम लो प्रायोरिटी टू द हाई प्रायोरिटी। सो फर्स्ट रूल उसने चेक किया, रिक्वेस्ट आ रही है ऑन स्लैश पेमेंट, सो फर्स्ट रूल जो है वो मैच नहीं हुआ, इट विल चेक सेकेंड रूल मैच हो गया, सो दैट्स व्हाई इट्स सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट टू द टारगेट ग्रुप, दैट इज द पेमेंट टारगेट ग्रुप। ओके, एंड जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी ओनली द DNS नेम, ये रिक्वेस्ट भेजी दैट, ओके, सो वो रिक्वेस्ट जाएगी लिसनर के पास, सो लिसनर उसको रिसीव करेगा एंड रूल्स को फ्रॉम लो प्रायोरिटी टू द हाई प्रायोरिटी 1 by 1 चेक करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो है विथ ओनली ALB DNS नेम के साथ हमने भेजी है। ओके, सो यहाँ पे कोई रूल जो है वो मैच नहीं होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई लिसनर जो है वो डिफॉल्ट रूल एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर कोई रूल मैच नहीं हो रहा है तो ये डिफॉल्ट रूल एग्जीक्यूट होता है। दैट्स व्हाई ये जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है ऑन अ डिफॉल्ट टारगेट ग्रुप एंड हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट फ्लो। लिसनर सिर्फ रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं करता है, बल्कि लिसनर रूल के बेसिस पर डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट किस टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड करनी है। ओके, सो अगर कोई रूल मैच होता है तो वो रिक्वेस्ट उस टारगेट ग्रुप के पास फॉरवर्ड कर देता है। नाउ कम टू द मेन पार्ट कि जो भी हमने AWS इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिलीट करने वाले हैं। ओके, सो हियर click on our load balancer and then click on action, then click on delete load balancer and give the
confirmation as a confirm. Click on delete. तो ये जो लोड बैलेंसर है वो हमारा लोड बैलेंसर डिलीट हो गया है. Okay, then click on target groups, then delete these target groups. Okay, click on default target group, click on action, click on delete and delete. Okay, so ये जो default target group है वो successfully delete हो गया. Okay, then click on this login target group, click on action, then click on delete. Like this, delete all target group that we have created. Click on payment, action, delete and delete. Then select query target group, click on action, delete and delete. ओके, तो सक्सेसफुली हमने जो 4 टारगेट ग्रुप क्रिएट किए थे उसको हमने डिलीट कर दिया है. ओके, नाउ स्क्रॉल हियर, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, देन टर्मिनेट दीज इंस्टेंसेस वन बाय वन. क्लिक ऑन इंस्टेंस स्टेट, select server 1, click on instance state and terminate delete. Then select server 2, click on instance state and click on terminate delete instance. Click on terminate. Then select server 4, click on instance state, click on terminate. Then select server 3, click on instance state and click on terminate. तो लाइक दिस हमने चारों जो मशीन्स हैं उन मशीन्स को हमने टर्मिनेट कर दिया है. ओके, सो नाउ विद इन सम टाइम ये जो इंस्टेंस स्टेट है वो चेंज हो जाएगी. सो वेट फॉर सम टाइम. नाउ all 4 EC2 machines are successfully terminated. Now after that, search your VPC, then open this on new tab, then here click on route tables, then this is a route table that we have created, then select this, click on subnet associations, then click on edit subnet associations and remove these entries and click on save associations. Then we will delete this route table. Click on action, click on delete route table and give the confirmation as delete. ओके, सो हमने राउट टेबल जो है वो डिलीट कर दिया है. देन क्लिक ऑन सबनेट्स, देन सेलेक्ट दिस सबनेट, क्लिक ऑन एक्शन एंड डिलीट सबनेट, देन गिव confirmation and click on delete. Now select this subnet, click on action and delete subnet, give the confirmation, delete. Now हमने सबनेट्स भी डिलीट कर दिए हैं. Okay, now here click on internet gateways, then select our gateway, then click on action, then detach from VPC, then detach internet gateway. Okay, now we can delete this internet gateway. Select this, click on action and delete internet gateway, then give confirmation as delete, then click on delete internet gateway. So हमारा जो internet gateway है वो delete हो गया है. Now click on VPC, select our VPC, click on action, click on delete VPC and give confirmation as a delete. Click on delete. So now सक्सेसफुली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने AWS पे क्रिएट किया था उसको हमने डिलीट कर दिया है.